Hello everyone, welcome back. Am I Hello, audible? Hello. Himanshu. Yes, Hello, you sir. are audible. Hello, Yes, you are Himanshu. audible. Yes. Great. Okay guys, so let's continue. So as I told you, हमने Yes. start किया है methods to study biopsychology, and in methods to study biopsychology we have several methods. Ablation methods, which we use to destruct the tissue inside the brain with a surgical knife or with any other methods to for the further investigation. That is comes under your ablation methods. In ablation method, first it was aspiration, where we have used the thin needle in order to take out that tissue and for the further investigation. In radio frequency, we have used the current method, radio frequency current. Yeah. Then in knife cuts, we use the हिमांशु sectioning. म्यूट कर दो सबको. Okay. हाँ भाई म्यूट कर दो यार. बार बार करता रहता हूँ भाई, मैं पता नहीं. So in knife cut method, we use the sectioning cutting method, where we make the subcortical knife cuts by placing the brain using a stereotaxic apparatus. ये देखो, ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, stereotaxic apparatus. तो अब ये apparatus का नाम है stereotaxics, तो तुम्हें ये सब तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है. लेकिन फिर भी अगर किसी को ज्यादा इशू आ रहा हो ना कि मेरे को ये वर्ड याद ही नहीं हो रहा, तो कम से कम बेसिक जरूर जान लेना कि नाइफ कट के अंदर होता क्या है, प्रोसेस के अंदर क्रायोजेनिक ब्लॉकेड में क्या होता है. तो ये बेसिक जरूर जान लेना कि क्या क्या है, so that you can easily write the answers in the examination. So now the second method is a histological method. In histological method, we basically prepare the tissue for the further investigation, because the tissue is itself is a it's very soft, and it is very really difficult to investigate under the microscopic instrument. So we need to prepare that tissue so that we can cut it into a slides, and we can further investigate it with the help of microscope. So in a histological method, we are preparing the tissue for further investigation. So first method is fixation. In fixation, we used a fixative solution which help us to fix the tissue. And in order to fix the tissue, there is a liquid which is known as formalin. ठीक है, formalin solution. So वो क्या करता है, it makes the tissue hard. वो tissue को hard कर देता है, ठीक है, so that it can be cut into a small pieces, or you can say into a slides, so that the microtome can be used for the further investigation. ठीक है. So after fixation, we have learned the freezing method. In freezing method, we try to freeze the tissue so that it can be cut into sliced. And in this method, we use a sugar solution where we dip the tissue and put it into a freezer. ठीक है, ये हम काम करते हैं freezing method के अंदर. Then the next is your embedding. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, it is another way to make the brain tissue hard is by embedding and covering it by पैराफिन और नाइट्रोसेल्यूलोज. तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी तक क्या करते थे, उसको फ्रीज कर रहे थे या फिर लिक्विड के अंदर डाल के उसको हार्ड कर रहे थे. इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, किसकी, पैराफिन की या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज की. ठीक है, तो ये कवर करने के बाद क्या हो जाएगा, वो टिश्यू हार्ड हो जाएगा, एंड देन इट कैन बी कट यूजिंग माइक्रोटॉम. तो ये हमारा एक एम्बेडिंग वाला मेथड हो गया. ठीक है. And once the tissue is covered by the paraffin and nitrocellulose, then the slide is dried, and it is then dried using different chemical solution. इसको हम ड्राई भी कर देते हैं उसको स्लाइड को, ताकि मैं उसको अच्छे से स्टडी कर पाऊं. ठीक है, ये एम्बेडिंग मेथड के अंदर आ जाएगा. इसके बाद आ जाता है स्टेनिंग. स्टेनिंग में मैं क्या करता हूं, स्टेनिंग में मैं ये मेथड है स्टेनिंग, जिसमें मैं क्या करूंगा, टिश्यू को क्या कर दूंगा, एक डिफरेंशिएट करूंगा टिश्यू को, उसको स्टडी करने के लिए उसका मैं कलर चेंज कर दूंगा किसी ना किसी मेथड से, किसी ना किसी केमिकल से मैं उसका कलर चेंज करूंगा, सो दैट वो माइक्रोस्कोप में इजीली डिफरेंशिएट हो जाए और मैं उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकूं आसानी से. ठीक है. सो इन दिस मेथड it is done so that the structural details of the tissue become apparent under the microscope. ये मैं इसलिए करता हूं ताकि जो टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, इट विल बिकम apparent, मतलब मैं उसको आसानी से देख पाऊं माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है. एंड दिस इज डन बाय डार्कनिंग
और कलरिंग पर्टिकुलर फीचर ऑफ द टिश्यू। मैं इसको क्या करूंगा, उसको डार्क करके या उसको कलर करके उसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा टिश्यू को, so that it can be easily investigate under the microscope. So the Nissl stains or cell body stains are most frequently used to dye the cell bodies. तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो Nissl stains and the cell body stains. ये दो चीज होती हैं जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं उस टिश्यू को क्या करने के लिए, डाई करने के लिए, ठीक है, उसका कलर चेंज करने के लिए। एंड माइलिन स्टेन भी एक यहाँ पे प्रोसेस है जो क्या करता है, कलर द माइलिन शेल्फ टू स्टडी द नर्व पाथवेज। मेम्ब्रेन स्टेन, एक मेम्ब्रेन स्टेन भी है जो क्या करता है, लाइक गोगली कॉक्स स्टेन, ये मेरे को नहीं पता है भाई ये गोगली कॉक्स स्टेन क्या होता है, ये सारे मेथड्स हैं, देखो ये स्टेनिंग के मेथड है सारे, ठीक है, स्टेनिंग के मेथड है, कौन कौन से मेथड है, एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा निसिल स्टेन, सेल बॉडी स्टेन, ये मेथड है स्टेनिंग के जो क्या करते हैं उसको डाई कर देते हैं सेल को, उसका कलर चेंज कर देते हैं। इसके अलावा एक माइलिन स्टेन है जो क्या करता है, कलर द माइलिन शेल्फ टू स्टडी द नर्व पाथवेज, ठीक है, नर्व के जो पाथ होते हैं उसको स्टडी करने के लिए एक माइलिन स्टेन वाला मेथड होता है, वो क्या करता है उसको डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है। और मेम्ब्रेन स्टेन भी होता है इसमें एक मेथड, लाइक गोगली कॉक स्टेन, ये भी एक मेथड है उसकी तरह होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है टू कलर द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स एंड द एक्सोन। तो ये क्या है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, अगर किसी ने पढ़ा हो तो ऐसे करके हमारे एक मैं इसको ऐसे सही कैसे बनाऊं, ऐसे करके होता है हमारा जो वो होता है ना, ऐसे करके कुछ होता है इसी टाइप का, न्यूरॉन। हाँ न्यूरॉन, नर्व ठीक सेल, है। तो न्यूरॉन। इसी के पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, इसी के पार्ट्स होते हैं। तो उसको क्या करता है, वो कलर कर देता है और हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में, सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर द रिसर्चर टू इन्वेस्टिगेट दैट न्यूरॉन। सो आफ्टर दिस, अभी हमने पढ़ लिया कि मैं कैसे कैसे स्टडी करूंगा टिश्यूज को, उसको क्या कहते हैं, उसको मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा था, शरीर से उसको बाहर निकाल रहा था, ब्रेन से उसको बाहर निकाल रहा था, तब उसको स्टडी कर रहा था, ठीक है। एब्लेशन में मैं बिहेवियर भी स्टडी कर रहा था, टिश्यू भी स्टडी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं उसको प्रिपेयर कर रहा था ताकि मैं उस टिश्यू को स्टडी कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं भी मैंने बिहेवियर के बारे में नहीं पढ़ा, ये जो मैं इसके ये जो मेथड था हमारा हिस्टोलॉजिकल मेथड, ये सिर्फ हेल्प करता है हमको टिश्यू को प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकूं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज साइकोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग मेथड्स। इन साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड्स, रिकॉर्डिंग मेथड्स में हम क्या करते हैं, हम कोई भी कटिंग, कोई भी, मैं उस टिश्यू को बाहर नहीं निकालूंगा ब्रेन से, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना, ये नॉन इन्वेजिव मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, या तो मैं अपने माइंड पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दूंगा, या फिर मैं अपने बॉडी पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दूंगा जो मुझे हेल्प करेगा, एक रीडिंग लेगा, रिकॉर्ड करेगा, मेरे इंपल्सेस को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, जो जो इंपल्सेस होते हैं उसको रिकॉर्ड करके मुझे बताएगा कि ये कैसे कैसे बिहेवियर हो रहा है, बिहेवियर में चेंज होगा तो इंपल्सेस में चेंज होगा, इंपल्सेस में चेंज होगा तो मशीन उसी तरह की रीडिंग बनाएगी। जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा ना, देखो ये इस टाइप की रीडिंग्स जो होती हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं एग्जांपल दूं, जब भी हम देखा होगा तुमने मूवीज वगैरह में कि जब पेशेंट जो बीमार होता है बहुत ज्यादा, तो ऐसी एक मशीन लगी होती है, कंप्यूटर लगा होता है, अगर वो ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है दैट मींस द पेशेंट क्या है, जिंदा है। अगर वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है दैट मींस अंदर कोई हो ही नहीं रही है, अंदर कोई भी क्या कहते हैं मोशन हो ही नहीं रहा है, कोई भी जो इंपल्स होता है वो पास हो ही नहीं रहा है, दैट मींस वो पेशेंट इज डेड, ठीक है। तो इसी तरह की हम यहाँ पे मशीन यूज करेंगे जो माइंड को रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग मेथड इज अ डिफरेंट method that helps to examine human participant in a invasive way. Such methods record from outside the skull. हम क्या कर रहे हैं, स्कल के आउटसाइड से हम रिकॉर्ड करेंगे, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी यूज करेंगे इन रीडिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए और उनको देखने के लिए, विदाउट इंसर्टिंग एनीथिंग। मैं यहाँ पे कुछ भी माइंड के अंदर इंसर्ट नहीं करूंगा, ना तो मैं ट्यूब डालूंगा, ना तो मैं उसको काटूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं पॉइजन डालूंगा, ना मैं कोई कूलेंट डालूंगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बाहर से ही इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उनकी क्या करूंगा, रीडिंग रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। ये मैं मेथड यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। So first method is electroencephalography. भाई ये बायोलॉजी के टर्म्स यार, आई एम रियली सॉरी इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड, बिकॉज मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ और मुझे बायोलॉजी पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी, बट आई एम भाई स्टिल चलती ट्राइंग ऐसी माय ही है। बेस्ट टू एक्सप्लेन द बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक समझ लेना, प्रोनाउंसिएशन इग्नोर कर देना सब, ठीक है। सो द फर्स्ट इज electroencephalography. Okay. The electrical activity of the brain is recorded using this method, and the technique is known as electroencephalography.
Okay. Then electrode are placed on the scalp of the patient and recording is done on the computer. So in this method, what is the procedure? इसमें एक electrodes होते हैं. Electrodes अगर आपने किसी ने साइंस वगैरह पढ़ी हो तो electrodes क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है. पॉजिटिव और नेगेटिव वाला यहाँ पे रोल होता है. वो हम मशीन्स होती है, वो क्या करता है, पूरा फ्लक्चुएशन, जो भी फ्लक्चुएशन होगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा मशीन में. ठीक है. एक कैथोड में लगाऊंगा, एक एनोड में लगाऊंगा, और वो क्या करूंगा, माइंड पे लगा दूंगा, और जो भी फ्लक्चुएशन होगा अंदर, ठीक है, वो सब क्या करेगा, उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेगा. ये ऐसे बेसिकली यहाँ पे मेथड होता है. सो समवन टेक्स्टेड इन द चैट, सो लेट मी चेक. भाई, ओके, फाइन. So now let me start. So in this method, the electrical activity of the brain is recorded using this machine. ठीक है. EEC, EEG बोलूंगा मैं इसको. ठीक है. EEG is very easy. ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो मेरी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो रिकॉर्ड की जाएगी इस मशीन की हेल्प से, जिसका नाम है EEG, इलेक्ट्रो इंसेपैथोलोग्राफी. ओके, ठीक है. द टेक्निक इज नोन एज दिस. Electrode are placed on the scalp of the patient and the recording is done on the computer. अब अगर आपको पता होगा, यहाँ पे बोल रहे थे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. अब हम, मेरे माइंड में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, कोई करंट थोड़ी ना पैदा कर रहा हूँ मैं माइंड में, ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे. ठीक है. तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होती है, मैंने बताया था, जो इंपल्सेस होते हैं. ठीक है. जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसकी वेव की फॉर्म में पास होती है. ठीक है. इसलिए यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रो इंसेपैथोलोग्राफी. तो इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन पास होती है इंपल्सेस उसके फॉर्म में, उसी को रिकॉर्ड करेगा ये मशीन, इसको रिकॉर्ड करेगी. ठीक है. सो द EEG सिग्नल्स help in the diagnosis of various disorder of the brain, mild head injury, cerebral pathology, epilepsy, and speed of the processing information, or how the memory function with an increase in the age. तो ये क्या करेगा, देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई मशीन से अगर मैं चेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, तो अगर मेरे माइंड में कोई डिसऑर्डर होगा, तो जो मेरी रीडिंग आएंगी वो भी डिफरेंट आएंगी. ठीक है. अगर अभी मैं 20 ईयर्स का हूं या मैं 25 ईयर्स का हूं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेरे माइंड में है, ठीक है, अगर मैं 50 साल हो जाऊंगा और मैं तब ये मेथड यूज करूंगा, EEG का अगर मैं यूज करूंगा, तब रीडिंग्स अलग आएंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है जो मेरे माइंड का, वो डिफरेंट हो जाएगा. राइट. तो ये बेसिकली यहाँ पे हेल्प करेगा, सिर्फ वो रीडिंग नोट करेगा, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो रहा है मेरे माइंड में, एक्टिविटीज हो रही है, उसको रिकॉर्ड करेगा और एक मशीन में मुझे शो कर देगा, और मुझे बिहेवियर पता चल जाएगा. एज पर द रीडिंग आई कैन कम टू द कंक्लूजन कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, या फिर ये यहाँ पे माइंड जो है वो ऐसे वर्क कर रहा है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा EEG. द नेक्स्ट इज मैग्नेटो इंसेपैथ. और मेरे को एक बार रीड करने दो सही से, मेरे को याद करने दो ये क्या है, बार बार आ रहा है ये वर्ड. Okay, so I will pronounce this as encephalography. Encephalography. भाई कितना बड़ा I वर्ड है think यार ये. it's magnetoencephalography. Okay, I will mark your words. याद करूंगा मैं आज रात को सब ये. हिमांशु भाई, हाँ जी. इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी की बुक में भी है. क्या है? हिंदी की बुक में भी है इसकी, मैग्नेटो एनसेफेलोग्राफी. Yes. एनसेफेलोग्राफी. नहीं, वैसे तो Magnetoencephalography. वैसे तो पता चलता है कि ये क्या लिखा हुआ है. वैसे तो अगर मैं ध्यान से रीड करूंगा तो आई कैन रीड, लेकिन वही जो फास्ट फास्ट पढ़ते हैं ना, तो नहीं आता, एकदम से निकलता ही नहीं है मुंह से. भाई हमने इंजीनियरिंग करी है यार, ये सब पता नहीं क्या है. मैंने तो 12th बायो छोड़ दी थी. भाई 12th में. एनसेफेलोग्राफी याद कर लो, फिर हो जाएगा दोनों. तीसरा भी यही है, ऐसा सही है. ठीक है, मैं कल याद करके आऊंगा सब. ओके, सो यहाँ पे देखो, हमने पहले क्या किया था, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटो है. मैग्नेटो है मतलब हम मैग्नेटिक का यूज करेंगे, मैग्नेटिक जो हम वेव्स होती हैं उसका यूज करेंगे, ऑल्सो रिफर्ड एज MEG. तो ये क्या करता है, मेजर्स द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्कैल्प. ठीक है. अब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. अब मैं ये कैसे समझाऊं आपको, ये सब सारा साइंस वाला आ गया. ठीक है. तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. तो मतलब ये है कि जो जहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जितने भी मेरे माइंड में जो काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पास कर रही है, जो भी वेव्स हैं, इंपल्स है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा मेरे स्कैल्प के सरफेस पे, उसको रिकॉर्ड करेगा MEG.
प्रोड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द बेसिक पैटर्न ऑफ द न्यूरल एक्टिविटी। ठीक है, मैं आपको ना, मैं सच में बताऊं, मेरे को टाइम नहीं लगता, मेरे को खुद से पढ़ने का टाइम नहीं लगता। अगर मुझे टाइम लग जाए पढ़ने का, तो मैं अच्छे से रेफर करके पूरा पढ़ के आपको बताऊंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि एक बार एग्जाम निकलने दो, उसके बाद मैं पूरा इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपके मजे हो जाएंगे। सो मैग्नेटो वाले में क्या करेंगे हम, पहले हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे थे मशीन में, वो हमारा काम हो गया। अब मैग्नेटो में हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से, जो सरफेस पे स्कैल्प के सरफेस पे, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये इसका मेन हो गया। ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, द मसल टेंशन इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमायोग्राम। The electrodes are attached to the skin over the muscle that is to be investigated. When the muscle contracts producing muscle tension, it is recorded. This information help us to know about muscle tone. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं मसल टेंशन को यूज करूंगा। यहाँ पे देखो इन्होंने एक डायग्राम भी दिया गया है। ठीक है, इस डायग्राम से आप देखो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स है और यहाँ पे स्टिमुलेटर ट्रांसफॉर्मर, स्टिमुलेटर ओवर नर्व, यहाँ पे एक मशीन मैंने लगा दी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है यहाँ से, और ये क्या कर रहा है, इनपुट बॉक्स कर रहा है। एक्टिव इलेक्ट्रोड इन द मसल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक्टिव इलेक्ट्रोड है मसल्स में, और ये ग्राउंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड ओवर मसल्स। ओके, हम यहाँ से मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी मसल्स के अंदर टेंशन हो रही है, मतलब मसल्स, जो मेरी मसल्स है वो जो भी मोशंस कर रही हैं, जो भी उनके अंदर हरकतें हो रही हैं, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा ईएमजी के हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राम की हेल्प से। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं माइंड पढ़ रहा हूं, तो मैं मसल्स को मैं क्या करूंगा, मसल्स का यहाँ पे क्या काम है। ठीक है, जैसे हमने कल बताया था कि जैसे मेरे वो घूस बम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो घूस बम्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मैं माइंड में सोचता हूँ, तभी घूस बम्स आते हैं मेरे बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो जो मेरी जितनी भी पूरी स्किन होती है, मेरे हर पार्ट, मेरा बॉडी का जो भी पार्ट है ना, वो सब मेरे माइंड से कनेक्टेड है। ओके गाइस, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं। मेरे को माइंड को ही रीड करना है ना, अब माइंड को मैंने पहले काट पीट के तो देख लिया, टिश्यूज को निकाल के देख लिया, वहां से पढ़ लिया। अब मेरे को वो काम नहीं करना। मैं क्या करूंगा, मेरे को कुछ नहीं काटना, मैं अदर मेथड यूज करूंगा। तो अदर मेथड में ये मेथड्स भी आते हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि मसल टेंशन से जो मेरे को रीडिंग मिली है, वो एग्जैक्ट ना इन्वेस्टिगेट कर पाए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, लेकिन स्टिल इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है ना हमको कि ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है। अगर मेरी मसल्स का, अगर ये टेंशन हो रही है मेरे मसल्स के अंदर, तो मेरे ब्रेन के अंदर ये चीज हो रही होगी। ठीक है, इसकी वजह से मेरी मसल्स के अंदर ये टेंशन हो रही है। तो बेसिकली ये यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है इलेक्ट्रोमायोग्राफी में। जो जो मेरी मसल्स में टेंशन होगी, वो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, और रिकॉर्ड करके मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा। उस रिपोर्ट से मैं समझाऊंगा कि हाँ, ये मेरे टेंशन हो रही है, और ये इसको मैं माइंड से रिलेट करूंगा, अपने ब्रेन से रिलेट करूंगा कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, सो इसके बाद है इलेक्ट्रोकुलोग्राफी, या पता है इसको यही बोलते होंगे भाई, प्लीज डोंट माइंड अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। सो द आई मूवमेंट, इसमें क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोकुलोग्राफी में हम क्या करेंगे, द आई मूवमेंट आर रिकॉर्डेड बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोकुलोग्राम ईओजी। ठीक है, ईओजी में हम क्या करेंगे, ईओजी में मैं करूंगा आईज की जो मूवमेंट होती है। ठीक है, इसका बेसिक हमने कल पढ़ा ही था कि आईज की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे मैं ब्रेन का पता कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ फंक्शन पता कर सकता हूँ, या फिर मैं मसल से भी पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं ब्रेन के फंक्शंस को पता करने के। तो ऐसे ही मैंने मसल्स टेंशन का पता कर लिया, अब मैं आईज से पता करूंगा कि आईज की मूवमेंट क्या हो रही है। ठीक है, आईज की मूवमेंट से मैं पता करूंगा कि मैं ब्रेन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेथड होगा ईओजी के अंदर। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल in the back and the front portion of the eyeball. This difference in potential is recorded with the help of the electrodes that are placed near the eye. अब ये देखो, आपने देखा होगा या आपने मूवीज में भी देखा होगा ना, ऐसी ऐसी चीजें, तारे वगैरह, या हॉलीवुड मूवी अगर आप देखते होंगे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते होंगे। ये ऐसे इलेक्ट्रोड Yes, होते हैं। sir. ये जितने भी यहाँ पे लगा रखे हैं ना, इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, जितने भी वहां पे मोशंस हो रहे हैं, या फिर इंपल्स हो रहा है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक या जो भी, उसको ये रिकॉर्ड करता है ये सब चीजें। ठीक है, ये उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ये सब यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा और हमें हेल्प करेगा। ये कौन स्क्रीन पे लिख देता है भाई? ओके फाइन। तो यहाँ से मैं आइस के मोशन से मैं उसको रिकॉर्ड करके और उसको रिलेट करूंगा। ये एक मेथड हो गया मेरे को ब्रेन के फंक्शन को पता करने का। देन द अदर वन इज इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी। इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी में two main indices of electrodermal activities are skin conductance level
एंड स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे दो चीज आ रही हैं, एक स्किन कंडक्टेंस लेवल और स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मसल टेंशन पढ़ लिया, ठीक है, मसल से मुझे पता चल गया। इसके बाद मैंने आइस को रीड कर लिया, आइस से मुझे पता चल गया। अब बारी आ गई स्किन की। अब मैं स्किन से पता करूंगा, स्किन को रिलेट करूंगा अपने ब्रेन फंक्शन से। तो अब मैं स्किन को रीड करूंगा, स्किन को रीड करने के मेथड को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी में मैं स्किन को रीड करूंगा कि स्किन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे माइंड की वजह से, मेरे ब्रेन की वजह से। ठीक है, और जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं उसको रिलेट करूंगा। ठीक है, करुण गौतम, व्हाट आर यू डूइंग मैन? ओके, so electrodermal activity of the skin is recorded by attaching the electrode on the fingers and the recording the fluctuation in the skin conductance, and SCL measure the background level of the skin conductance associated with the particular situation. तो SCL देखो, इस मेथड में क्या करूंगा, जो इलेक्ट्रोड थे पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे आइस को मेजर कर रहा हूँ, तो मैंने आइस के आसपास लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जब यहाँ पे माइंड को रीड कर रहा था तो पूरे माइंड के ऊपर लगा दिए थे, ब्रेन के ऊपर मैंने लगा दिए थे इलेक्ट्रोड्स। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को स्किन को टेस्ट करना है, तो मेरे जो फिंगर टिप्स होती हैं, इस डायग्राम में देखो आप, फिंगर टिप्स हो रही हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड्स को मैंने लगा दिया, और इनमें जो भी मोशन होगा, जो भी इनके अंदर एक्टिविटीज होगी, इंपल्स की जो भी एक्टिविटीज होगी, वो रिकॉर्ड हो जाएगी इस मशीन के अंदर। ठीक है, और जो भी रीडिंग्स आएंगी उससे मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि ऐसे ऐसे ब्रेन में फंक्शन हो रहा है ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो SCL का मतलब क्या होगा, स्किन कंडक्टेंस लेवल, ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा द बैकग्राउंड लेवल ऑफ द स्किन कंडक्टेंस एसोसिएट विद द पर्टिकुलर सिचुएशन। जो स्किन के जो पीछे, जो स्किन के बैकग्राउंड में, मतलब स्किन के बैकग्राउंड में जो भी सिचुएशनली जो मैं रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है, अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो सिचुएशनली रिएक्ट कर रहा हूं, वो किसके अंदर आ जाएगा, SCL में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन SCR क्या करेगा, स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये करेगा, इट इज द ट्रांजिएंट change in the skin conductance associated with the distinct experience। अब स्किन के ऊपर जो जो चेंजेस हो रहे हैं ना बाहर, कि अगर मैं अंदर घबरा रहा हूं या मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं, तो मेरे स्किन में पसीना आ जाएगा। होता है ना कि बहुत ज्यादा डर जाते तो पसीना आ जाता है शरीर में। ठीक है, बोलते कि भाई तेरे को तो बहुत पसीना आ रहा है, तो अंदर जो मेरी फीलिंग आ रही है वो हो जाएगी SCL। ठीक है, स्किन कंडक्टेंस लेवल, जो मैं अंदर फील कर रहा हूं, लेकिन बाहर जो मैं रिएक्ट कर रहा हूं, जो पसीना मेरी बॉडी के बाहर आ रहा है, वो हो जाएगा मेरा स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एनी यस डाउट? हिमांशु। ठीक है। सो No, इलेक्ट्रो sir, no doubt. ओके, सो इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी थी यार, मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो इन इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी इज द कंटिन्यूअस वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्किन व्हिच वेरीज विद द मॉइस्चर लेवल। द मॉइस्चर लेवल डिपेंड्स ऑन द स्वेट ग्लैंड्स एंड द ब्लड फ्लो व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से डेफिनेशन, मेरे को अच्छी लगी थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख ली थी जितना मेरे को टाइम लगा था। तो इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्किन, कि स्किन के जो इलेक्ट्रिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे मॉइस्चर लेवल, स्किन का जो मॉइस्चर लेवल होता है, उसके बाद, और जो मॉइस्चर लेवल जो स्किन का मेरा होता है वो डिपेंड करता है स्वेट ग्लैंड्स पे या फिर ब्लड फ्लो पे। ठीक है, विच आर कंट्रोल्ड। ठीक है, अब देखो सारी चीजें कनेक्ट कर रखी है। इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी में क्या करूंगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन रिकॉर्ड करूंगा, इलेक्ट्रिक जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्किन की वो रिकॉर्ड करूंगा, ये तो मेरा प्रोसेस हो गया। इसके अंदर होता क्या है, मॉइस्चर लेवल को मैं चेक करूंगा कि मेरे स्किन का मॉइस्चर लेवल क्या है। ठीक है, अब स्किन का जो मॉइस्चर लेवल होता है वो चेंज कैसे होता है, वो चेंज होता है मेरे स्वीट ग्लैंड से और ब्लड फ्लो से। मेरे अंदर ब्लड कैसा फ्लो कर रहा है, जैसे मैं बहुत तेज भागूंगा तो जो ब्लड होता है क्या करता है, हार्ट बीट मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है तो मेरे जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और मेरे पसीना आ जाता है मेरे शरीर पे। ठीक है, तो ये सब इसकी वजह से आता है मॉइस्चर। अब ये सब कैसे होता है, ब्लड फ्लो और जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल तो ब्रेन ही कर रहा है ना, कंट्रोल तो मेरा नर्वस सिस्टम ही कर रहा है। नर्वस सिस्टम ही मेरी बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं ना दिमाग ही तो सब चीज है। अगर दिमाग ही काम नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सब चीज डेड हो जाएंगी। तो इसलिए नर्वस सिस्टम क्या करेगा, नर्वस सिस्टम ब्लड फ्लो को, स्वीट ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा, और ब्लड फ्लो स्वीट ग्लैंड्स क्या करेंगे, मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करेंगे। और इन सबको मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, इन सबको रिकॉर्ड करूंगा मैं इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी से। ठीक है, आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। क्लियर हो गया ना? हाँ जी।
सो द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन तो आई होप बहुत सारे बच्चों को पता होगा, थोड़ा थोड़ा तो सबको पता ही होता है, ये सब हमने पढ़ा ही होगा। इसके अंदर देखो वही सब आएंगे जो हमने देखते हैं, केमिकल स्टिमुलेशन, ये सब ही आएंगे। एक्सरे हो गया आपका, ये सीटी स्कैन हो गया, फिर आपका एमआरआई आ गया, ठीक है, पीईटी आ गया। तो ये सब आप फैमिलियर होंगे, सबसे कराया भी होगा, हमें पता नहीं होता होता है क्या, बस हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हाँ डॉक्टर ने बोल दिया सिटी स्कैन कराना है और करा के आ गए, हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसके अंदर होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है। तो ये प्रोसेस हमें सब पता चलेंगे कि होते क्या है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन में द ब्रेन कैन बी स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली, ठीक है, नाम से पता चल गया कि ब्रेन को मैं स्टिमुलेट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी से टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ इट्स वेरियस न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रिकली अपने ब्रेन को क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा टू गेन द इंफॉर्मेशन और टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी मैं ब्रेन को स्टिमुलेट करूंगा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की हेल्प से, देयर इज अ चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड an action potential is initiated. This causes behavioral change depending upon which part of the area has been stimulated. तो मैं क्या करूंगा इस प्रोसेस के अंदर, there is a change in the resting membrane potential. तो ये क्या करेगा, अब जब मैं जो इलेक्ट्रिकल इसको यूज करता हूँ ना, आपने देखा होगा बहुत बार जब करंट वगैरह देते हैं बहुत लोगों को, करंट वगैरह जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, आपने देखा होगा मूवीज में तो देखा ही होगा सबने, ठीक है। ये करंट दे दिया उसको तो उसके बाद उसकी बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, या वो शांत हो जाता है। जैसे अगर कोई पागल पागल आदमी होता है, आपने देखा होगा ना, वो तेरे नाम मूवी देखी होगी, या पता नहीं बहुत सारी मूवी होती है मुझे याद नहीं है। तो जब जैसे आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना, उसका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा ऐसे खराब हो जाता है, तो उसको करंट दे देते हैं। तो करंट देने से क्या हो जाएगा, करंट देने से जो भी उसका इंपल्स होता है उसके माइंड के अंदर वो कंट्रोल हो जाएगा और वो दूसरे बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसी को यहाँ पे इन्होंने दूसरे वर्ड में क्या बोला गया है, देयर इज अ चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, देयर इज अ चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एन एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट। उसके बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट करके उसको इनिशिएट कर देगा, दूसरा एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट कर देगा, जो क्या करेगा, दिस कॉज बिहेवियरल चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट ऑफ द एरिया हैज बीन स्टिमुलेटेड, ठीक है। ये क्या करेगा, बिहेवियर में चेंज ला देगा, और मैं इसको किसी भी बॉडी पार्ट पे यूज कर सकता हूं जिसको मुझे स्टिमुलेट करना है, ठीक है। फॉर स्टिमुलेटिंग द ब्रेन, अब ब्रेन को स्टिमुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिकली ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोड आर यूज, इलेक्ट्रोड हमें यूज करने पड़ेंगे। माइक्रो इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ फाइन मेटल वायर्स थ्रू विच द नर्व्स आर इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड। तो यहाँ पे मैं माइक्रो इलेक्ट्रोड यूज करूंगा जो फाइन मेटल से बने होते हैं, वायर से, ठीक है। और उसको क्या किया जाएगा, मैक्रो इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ स्टील्स वायर्स एंड आर प्लेस्ड ईदर ऑन द टॉप ऑफ द स्कैल्प और इनसाइड द ब्रेन टू रिकॉर्ड द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रैक्स व्हिच आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन टुगेदर। तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को प्लेस करूंगा मैं, ठीक है। वही वाला प्रोसेस है कि जो मैंने पहले बताया था, इससे पहले भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में ब्रेन को अगर मुझे पढ़ना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो इलेक्ट्रोड्स को यूज करूंगा, या तो मैं ब्रेन के ऊपर लगा दूंगा इलेक्ट्रोड्स, या फिर इसमें ऐसा प्रोसेस भी होता है कि उसके इनसाइड लगाने के भी होते हैं प्रोसेस, ठीक है। इसमें यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया है। तो कैसे भी करके मुझे इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करना है ब्रेन पे, और इम्प्लांट करने के बाद उसकी एक्टिविटीज को मुझे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसेस हो जाएगा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में। अब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, the electrical recording can be made over a long period of time, such as when the animal is recovering from a surgery. This is known as chronic recording. If the scientist is focusing the study a particular nerve pathway or where the information is going, then acute recording is done. This recording of the electrical signals are then displayed through oscilloscope और ink writing oscilloscope, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनिमल्स पे रिसर्च किया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इससे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि क्या कहते हैं कि टिश्यू कैसे काम कर रहा है, मुझे अंदर की फंक्शनिंग नहीं पता चलेगी, मुझे ये पता चलेगा कि जब जब मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, जब जब मेरा बिहेवियर चेंज होगा तो मेरे जो इंपल्सिस हैं, जो माइंड के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, जो फ्लो कर रहे हैं, उनका फ्लो चेंज हो जाएगा, राइट। उनका फ्लो चेंज होगा तभी बिहेवियर मेरा चेंज होगा। और अगर मैं इलेक्ट्रोड लगा दूंगा अपने ब्रेन के ऊपर, तो मैं उनकी रीडिंग्स को मैं नोट कर सकता हूँ, ठीक है, उनकी रीडिंग्स को नोट करूंगा। और नोट करने के बाद सपोज मेरे आंसर में ABC आ गया, अगर मेरा आंसर आ रहा है ABC, कुछ भी आंसर मान लो, रीडिंग मैंने नोट करी ABC, और ABC रीडिंग नोट कर रहा हूं, तो उसका जो बिहेव कब ABC रीडिंग आ रही है, जब मैं खाना खा रहा था,
जब मैं खाना खा रहा था तो मेरी रीडिंग आई ABC, और जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी रीडिंग आई 7 to 8। ठीक है, तो अगर मेरी रीडिंग 7 to 8 आ रही है, 7 to 8 रीडिंग आई जब मैं खाना खा रहा था, ठीक है, और मेरी ABC आई जब मैं पढ़ाई कर रहा था रीडिंग, तो अब मेरे को ये पता चल गया कि कोई भी इंसान, अगर मैं उसकी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करूंगा, अगर रीडिंग में ABC आंसर आ रहा है, दैट मीन्स वो इंसान खाना खा रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन परफॉर्म कर रहा हूं और मेरे आंसर में अगर 7 to 8 आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ, गारंटी बोल सकता हूँ कि वो आदमी क्या कर रहा होगा, वो आदमी पढ़ रहा होगा। यही हमारा पर्पज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन का। मैं सिर्फ रीडिंग रिकॉर्ड करनी है, और जैसे जैसे रीडिंग्स आएंगी मैं पता कर सकता हूँ, उससे बिहेवियर का पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। अब इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ऑसिलोस्कोप एंड इंक राइटिंग ऑसिलोस्कोप और कंप्यूटर। ठीक है, तीन चीजों से उसको मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। अब डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा ना, मशीन तो लगानी पड़ेगी जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। खाली इलेक्ट्रोड लगा दिए, मशीन लगा दी, तो उससे काम थोड़ा ना चलेगा, उसको मेरे को रिकॉर्ड करके डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे तीन मेथड्स हैं, ऑसिलोस्कोप, इंक राइटिंग ऑसिलोस्कोप एंड कंप्यूटर। तो ऑसिलोस्कोप क्या होता है, ऑसिलोस्कोप में इट हेल्प्स टू डिस्प्ले द इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग पर यूनिट टाइम। ये हेल्प करता है इस मेथड में, ऑसिलोस्कोप क्या करता है, हमें हेल्प करता है उस इलेक्ट्रिक रीडिंग को डिस्प्ले करने में जो पर यूनिट टाइम होती है। ठीक है, कि पर यूनिट टाइम मतलब कुछ भी लगा लो, पर यूनिट टाइम मतलब अगर पर आर अगर मैं इसको बोलूं तो कितनी रीडिंग्स हुई पर आवर में, ठीक है, कितनी रीडिंग्स हुई पर सेकंड में, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, इट हेल्प्स टू डिस्प्ले द इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग पर यूनिट टाइम। इट हैज अ कैथोड रे ट्यूब। अब इसके अंदर होता क्या है, ऑसिलोस्कोप के अंदर एक कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है, ऑन विच द डिस्प्ले इज डन। एक कैथोड रे ट्यूब होती है जिसके ऊपर डिस्प्ले लगाई जाती है। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। ठीक है, ये यूज किया जाता है इस मेथड को एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए एक सिंगल न्यूरॉन की। ठीक है, एंड व्हेन द एक्शन इज डिटेक्टेड, कोई भी एक्शन अगर न्यूरॉन के अंदर होगा, इट इज एम्पलीफाइड। अगर एक्शन कुछ भी न्यूरॉन के अंदर होगा तो क्या होगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा, इंपल्स हो जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा, और जैसे ही उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा वो ऑसिलोस्कोप के अंदर मुझे सुनाई देगा, इजिली हर्ड बाय द रिसर्चर। ये है मेरा ऑसिलोस्कोप। इंक राइटिंग ऑसिलोस्कोप में क्या होगा, इंक राइटिंग, अब देखो नाम से पता चल रहा है इंक राइटिंग मतलब इंक के साथ कुछ ना कुछ लिखा जाएगा इसके अंदर। दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का नाम तो आपने सुना होगा बहुत बार। ठीक है, तो पॉलीग्राफ में क्या होता है, द इवोक्ड पोटेंशियल आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रोड्स दैट आर अटैच टू द स्कैल्प। अब इसमें क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड को हमने अटैच किया था स्कैल्प के साथ, वो रिकॉर्ड करेगा इवोक्ड पोटेंशियल को। ठीक है, पोटेंशियल को रिकॉर्ड करेगा इस मेथड में, इन राइटिंग ऑसिलोस्कोप में। और जो रीडिंग उसने रिकॉर्ड करी वो कहां पे होगी, देयर आर नीडल्स पेन टिप्स दैट रिकॉर्ड द न्यूरल एक्टिविटी ऑन द रोलिंग पेपर विद पेन। आपने देखा होगा ना, जैसे अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है, ये अब यूज ही नहीं होता। मैं आपको सही बताऊं, ऑसिलोस्कोप इंक राइटिंग ऑसिलोस्कोप यूज ही नहीं होता, हम डायरेक्ट कंप्यूटर यूज करते हैं आज के जमाने में। लेकिन अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो या आपने कुछ मूवीज में देखा हो, तो आपने देखा हो ना जब भूकंप आते हैं, जो भूकंप मेजर करते हैं ना कि भाई कहाँ कहाँ पे ये भूकंप वाला सीन हो रहा है, उनके पास ऐसा ही मेथड होता है। ठीक है, एक निब होती है और एक टिप होती है, वो क्या करती है, मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। जैसे वो उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है ना, पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही मेथड यहाँ पे भी होता है। इंपल्स के साथ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, ऑसिलोस्कोप में एक टिप के साथ एक क्या कहते हैं, नीडल के साथ कनेक्ट करके और उसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे जैसे इंपल्स वहां पे एक्टिव करेगा, वो एक्टिविटी करेगा, वैसे वो नीडल भी एक्टिविटी करेगी। ठीक है, तो सपोज करो अगर इसको एक्सप्लेन करूं मैं, अगर मैं खाना खा रहा हूं और मेरी रीडिंग अगर ऐसी आ रही है, ठीक है, और अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरी रीडिंग ऐसी आ रही है, ऐसे आती है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा, इससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा, देखो कि अगर मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसकी रीडिंग ऐसे आ रही है। तो मैं सिर्फ रीडिंग को पता करूंगा, और रीडिंग के बेसिस पे मैं बिहेवियर को एग्जामिन करूंगा, अपने ब्रेन को एग्जामिन करूंगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचूंगा। आई होप क्लियर आया, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तो, आई थिंक। Yes, sir. ओके गाइस, देन थर्ड इज इंक कंप्यूटर। राइटिंग वाला दोबारा समझा दो। कौन सा, इंक राइटिंग? इंक देखो राइटिंग। ओसिलोस्कोप में क्या था, ओसिलोस्कोप में कोई भी मेरे पास नीडल नहीं थी, पेन नहीं था। ठीक है, वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा था, वो एक कैथोड रे ट्यूब था हमारे पास, एक कैथोड रे ट्यूब इंस्ट्रूमेंट का नाम है, वो मेरे पास था, जो क्या करता डिस्प्ले की तरह काम कर रहा था। और जैसी कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही थी, कोई भी एक्टिविटी हो रही थी न्यूरॉन के अंदर,
और वैसे ही जैसी कोई एक्टिविटी हो रही थी वो एम्पलीफाई हो रही थी। एम्पलीफायर, गाना तो सुना होगा सबको, सबने एम्पलीफायर, ठीक है। एम्पलीफायर का मतलब होता है बेस, मतलब ज्यादा एम्पलीफाई कर देना, इंक्रीज कर देना। जैसी एक्टिविटी होगी इंपल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हो जाएगा तो वो मुझे सुनाई देगा ओसिलोस्कोप में, या रिसर्चर को सुनाई देगा, इजिली हर्ड बाय रिसर्चर। ये हो गया ओसिलोस्कोप। इंक राइटिंग में क्या होगा, लिखा जाएगा, ठीक है। इंक राइटिंग में डिफरेंस क्या आ गया, लिखा जाएगा, ठीक है। एक डायग्राम बनेगा, कैसे बनेगा, एक पेन से डायग्राम बनेगा, मैं दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड। इंक राइटिंग ओसिलोस्कोप आपको दिख ही जाएगा वो, इसी से आ जाएगा। देखो ऐसी, मैं इसी से एग्जांपल दे देता हूँ। ये ऐसी करके एक निब होगी हमारे पास, निडल होगा, और ऐसे एक पेपर होगा, ठीक है। और जैसे कोई इंपल्स होगा और वो क्या करेगा, ये निडल हो जाएगी यहाँ से, क्या करेगी, निडल हिलेगी, यहाँ से हिलेगी तो नीचे पेन से क्या होएगा, एक इंक से क्या होगा, निशान बन जाएगा इधर। तो जैसे जैसे एक्टिविटी होगी वैसे वैसे यहाँ पे क्या करता जाएगा, ये निशान बनाता जाएगा, हिलता जाएगा और निशान बनाता जाएगा। तो ये जो मेथड हो गया पेपर, जहाँ पे मैंने यूज किया, एक पेन को यूज किया, निडल को यूज किया, इंक को यूज किया, तो ये मेरा हो जाएगा इंक राइटिंग ओसिलोस्कोप। लेकिन जब मैं इसको यूज नहीं करूंगा, नॉर्मल मैं वैसे ही जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो मेरा हो जाएगा ओसिलोस्कोप, ठीक है। हाँ जी, आ अब गया समझ। कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर तो आपको पता ही है, हेल्प टू डिस्प्ले, स्टोर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड बाय रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब मेनली हम यहाँ कंप्यूटर को ही यूज करते हैं सब जगह। ये सब मेथड बहुत पुराने मेथड हो गए,